Ma'am, please allow me to share my screen also. That sprite के ऊपर आप क्या करोगे? Just a minute, bete. We need a few seconds to take out the things. Yes, this page we were doing. Up to this part, I have told you. Now we are going to start from this place. Measures of money supply. Now, measures of money supply का meaning है those methods, those formulas, those equations with the help of which we can come to assess कि how much total money is there in the country. Means methods to measure. जैसे हम बोलते हैं ना methods of measures of central tendency, measures of dispersion. तो ऐसे ये है measures of money supply. Now these have been given by the RBI. ये कोई वो नहीं है कि anybody can define. These measures, these ways have been prescribed by the RBI. Now let us start with the first one. First, total 4 measures are there: M1, M2, M3 and M4. Now first one is M1. First measure के according what is the money supply in the country? So it includes 3 things, as you can read: currency and coins with the public, plus demand deposits of commercial banks, plus other deposits with the RBI. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए. Now see carefully. This part is same as I have just told. ये बिल्कुल same है, currency and coins with the public. Meaning of money. Sorry Meenakshi ma'am, disturbing you. हाँ जी, no. आप अपनी स्क्रीन थोड़ी zoom कर सकते हैं? Because some students are texting me कि Okay, let me try to maximize. नहीं मैम, वो नीचे मैम यहाँ बिल्कुल ऊपर ये मैक्सिमाइज तो है. चलिए ठीक है, आ गया उसका मैसेज कि अभी ठीक है. ओके, बस ये ऊपर यही आता है, एक मिनिमाइज है, एक रिस्टोर डाउन हो जाता है ना. तो नहीं वैसे मैम यहाँ पे पिक्चर के नीचे ना, बिल्कुल नीचे जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो जूम का होता है, वहां से हम उसको जूम आउट कर सकते हैं. ओके, अदरवाइज रहने दीजिए, हो गया है. हाँ जी, यहाँ से कर सकते डिस्प्ले साइज जहाँ पे ये आ रहा है मैम, चेंजेस डिस्प्ले साइज. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ से हम जूम आउट कर सकते हैं. मैंने कर तो दिया, बस इतना ही आ रहा है मैम. चलिए कोई बात नहीं मैम, लीव इट. उसका मैसेज आ गया बच्चे का कि ठीक है. ओके ओके. या अदरवाइज हम अपनी स्क्रीन जूम कर सकते हैं ना, जूम पे यहाँ पे भी, इस ऐप पे भी. इतना ही हो रहा है, इससे ज्यादा हो नहीं रहा है. बाकी मुझे पता नहीं, मैं बाद में ट्राई करके देख लूंगी. नॉट अ प्रॉब्लम मैम, कोई बात नहीं. हाँ जी, वी विल डू इट लेटर ऑन. ओके ओके. हाँ जी. So first is currency and coins with the public. As I have said earlier, same thing, paper notes and coins of various denominations which are there with the people in their hands or in their homes. Second is plus इसमें क्या करना है? Now we have to add demand deposits of commercial banks. Now demand deposits of commercial banks, same अभी जो मैंने बताया, same component of money supply, means money of the people which is lying in their saving accounts in the commercial banks and which they can withdraw at any time. Abhi jo whatever I have explained, same thing. Checks can also be used to withdraw this money. Now ये commercial bank क्यों use किया, ये I will explain further in the next lesson. अभी के लिए आप इतना समझ लो, जैसे आपके घर के आसपास कोई भी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, कोई एक्सिस बैंक है, कोई भी बैंक है, all they are commercial banks. ठीक है. So and ये तो हो गया. Now you see carefully, these two are not new. These are the same components of money supply. यहाँ भी यही लिखा हुआ है, currency ये भी यही same लिखा है, currency. Here it is demand deposits, here it is demand deposit. Both are same. ठीक. So M1 includes both the components. Now plus third additional thing is given here, that is other deposits with the RBI. Now here question arises कि which are other deposits. Now you can see in your book also, other deposits में क्या आ जाता है? Other deposits include deposits which are held by the RBI on behalf of foreign banks and governments, public financial institutions, World Bank and IMF etc. मतलब ये कि यहाँ पर हमने देखना है, जो RBI के पास कोई भी फॉरेन कंट्रीज की गवर्नमेंट ने अपने डिपॉजिट करवाए हुए हैं. मतलब जैसे हम ऑर्डिनरी पीपल, वी गो टू सिंपल कमर्शियल बैंक्स विच आर देयर अराउंड अस. वी डू नॉट गो टू रिजर्व बैंक, वहाँ जाके अपना काम नहीं करते हैं, वहाँ डिपॉजिट नहीं करवाते हैं डायरेक्टली. वी आर नॉट लिंक्ड विद RBI डायरेक्टली.
इनडायरेक्टली वी आर अटैच्ड, बट डायरेक्टली वी आर अटैच्ड विद द कमर्शियल बैंक्स ओनली, जो आसपास है हमारे घरों के, ठीक है। बट जो कोई फॉरेन कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो कोई अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं इंडिया में, तो वो कहाँ पे खुलवा सकते हैं? दे कैन गेट दैट अकाउंट ओपनड ओनली विद द आरबीआई, ठीक है। विद अदर बैंक्स भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो मेन है फॉरेन गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर, दे कैन हैव देयर डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। सिमिलरली कोई दूसरे कंट्रीज के कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या अपने कंट्री के भी हो सकते हैं, तो वो भी उन्होंने जो अपना अकाउंट खुलवाना है, दे कैन गेट इट ओपन विद द आरबीआई। एंड थर्डली, कोई भी वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मतलब इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, if they want to keep their money in our country in India, तो they can have their deposits with the RBI. मतलब आम ऑर्डिनरी पब्लिक ऑफ इंडिया, दे विल कीप देयर मनी इन देयर कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, आसपास रखेंगे। बट कोई फॉरेन कंट्री का कुछ काम हो, या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का कुछ भी डिपॉजिट्स हो, या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, दे विल कीप देयर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। वो सीधे रखेंगे आरबीआई के पास में, वो कमर्शियल बैंकों के पास में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो दिस थिंग हैज बीन ओनली एडेड, बट ये जो पार्ट है, इट कंस्टिट्यूट्स ए वेरी लिटिल पार्ट, वेरी स्मॉल पार्ट। मतलब इसका अमाउंट कोई बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है एज कम्पेयर टू दीज डिमांड डिपॉजिट्स एंड करेंसी। तो एक निग्लिजिबल है। जैसे मान लीजिए, ये मान लो ये दोनों मिला के हैं 97%, और ये इसका परसेंटेज है मान लो ओनली 2 या 3%, तो वेरी लेस पार्ट इज देयर। इस करके आमतौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है दैट इज गिवन टू दीज 2 पार्ट्स, ठीक। सो if we add these three, so whatever money comes, whatever value comes, that is known as M1 measure of money supply. Now second is M2. Now M2 is equal to, very simple and easy also. Now M1 में प्लस क्या करना है, what is to be added? Saving deposits with the post office saving banks. Now M1 का meaning same है, these same components. So instead of writing all these three again, in place of this simply we can write this M1. बट अदरवाइज इफ यू वांट टू एक्सपैंड, आपसे कोई और पूछे कि क्या है, तो आप नीचे यहाँ पर M1 लिख के नीचे आप फिर एक ब्रैकेट में यू कैन गिव बी M1 इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल दीज थ्री। नाउ ये दिस पार्ट इज क्वाइट क्लियर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सेविंग बैंक्स डिपॉजिट्स का मीनिंग है कि एज वी पीपल, पब्लिक ऑफ द कंट्री, वी गेट अवर अकाउंट्स ओपनड विद द कमर्शियल बैंक्स, तो सेम वे वी कैन हैव अवर अकाउंट्स विद द पोस्ट ऑफिसेज ऑल्सो। आपने अपने आसपास देखा होगा पोस्ट ऑफिस भी होते हैं, तो पीपल कैन हैव देयर अकाउंट्स ओपनड इन दोज पोस्ट ऑफिसेज ऑल्सो। घरों के आसपास जो भी, जिसको जो भी नज़दीक पड़ता है, वहाँ पे वो अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, वहाँ पे अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करवा सकते हैं, ठीक है। जिससे खास करके ये जो पोस्ट ऑफिस है, नो पोस्टल डिपार्टमेंट का तो काम है ही है, डाक का काम तो है ही है, बट अलॉन्ग विद दैट टू एनकरेज सेविंग्स ऑफ द पीपल, लोग करें। जो बैंक नहीं जा सकता है, या जिसको बैंक जाना डिफिकल्ट लगता है, घर के आसपास कोई पोस्ट ऑफिस है, वहाँ जाना उसको कंफर्टेबल लगता है, तो इट इज़ ए काइंड ऑफ फैसिलिटी फॉर दोज पीपल। बट अदरवाइज इसका मीनिंग ये नहीं है कि अगर वी हैव अकाउंट्स इन बैंक तो वी कैन नॉट हैव अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस। वी कैन हैव, anybody, any citizen of the country, they can have their accounts opened in the post offices as well as in the banks of the country. कहीं भी हमारी मर्जी है। तो जो भी लोगों के सेविंग डिपॉजिट्स हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट है, ऑर्डिनरी अकाउंट है, वहाँ पर जो भी लोगों की सेविंग पड़ी हुई है, जो भी पैसे पड़े हुए हैं, उनको इफ़ वी ऐड इन दिस M1 मेजर, देन वी गेट द ब्रॉडर मेजर दैट इज M2, तो उसको नाम दे देते हैं M2, ठीक है। नाउ कमिंग टू थर्ड M3. M3 इज इक्वल टू, अब इसमें M1 सेम है जो ऊपर किया, यही वाला सेम M1 प्लस, अब इसमें करना है नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, ठीक है, नेट टाइम डिपॉजिट्स। नाउ यहाँ पे आपकी बुक में नेक्स्ट चैप्टर में दिया होगा, जब करेंगे वहाँ पे तब आपको मैं बता दूंगी। नाउ टाइम डिपॉजिट्स का क्या मीनिंग है, यहाँ से पहले थोड़ा समझ लें। You have seen here we are using the term demand deposits, here we are using the term time deposit, so there is difference. In our simple ordinary language, टाइम डिपॉजिट्स को हम लोग आमतौर पे बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स। आपने घरों पे सुना होगा ना, एफडी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में एफडी, एफडी मींस फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट वन एंड द सेम थिंग। अब इसमें क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, फॉर ए पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम वी डिपॉजिट अवर मनी। वो टाइम आपकी मर्जी है, 1 ईयर भी हो सकता है, 5 ईयर भी हो सकता है, 10, आपकी मर्जी, किसी की भी अपनी चॉइस है कितने साल के लिए वन वांट्स टू हैव दैट एफडी। तो जितना भी टाइम है उसको हम, क्योंकि वो फिक्स्ड टाइम है, मनी कैन नॉट बी विदड्रॉन बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ दैट टाइम,
पहले नहीं निकाल सकते. इफ यू हैव गॉट FD फॉर 5 years तो यू कैन नॉट विदड्रॉ दैट मनी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 year. आपको वेट करना पड़ेगा 5 year जब पूरे होंगे, ओनली देन यू विल हैव योर मनी. उसके पहले नहीं मिलेगा. सेकेंडली, इसके ऊपर जो टाइम डिपॉजिट होता है, इसके ऊपर कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट इज मोर. डिमांड डिपॉजिट पे बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि ये हम कभी भी निकाल सकते हैं. बट ऑन द अदर साइड टाइम डिपॉजिट पे, फिक्स डिपॉजिट पे कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट, मोर इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक. तभी लोगों को थोड़ा अट्रैक्शन होता है, लालच होता है कि ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तभी कोई करवाता है, अदरवाइज तो कोई भी नहीं करवाएगा. सो टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स. तो ये हो गया FD, लोगों के जो भी पड़े हुए हैं FD के पैसे. नाउ लोगों के नहीं कहना, अब यहाँ पे वर्ड हैज़ बीन यूज्ड नेट. ठीक है, अब इस नेट का क्या मीनिंग है? नेट का मीनिंग है जैसे हम लोग अपने जाके बैंक में डिपॉजिट्स करवाते हैं, FD करवाते हैं, तो सेम वे कोई भी एक बैंक भी किसी दूसरे बैंक के पास में अपनी FD करवा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक जाके एक्सिस बैंक में वहाँ पर अपना FD का अकाउंट खुलवाए, FD करवा ले. मतलब अपने बैंक में नहीं रखी, किसी और जगह जाके उसने अपना काम करवा लिया, अपनी FD करवा ली. या जैसे हम ऐसे समझ लें, जैसे एक डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता, मान लो वो किसी दूसरे के पास जाके अपना इलाज करवाता है. तो सेम वे कोई बैंक अपने पैसे को अपने पास नहीं रखना चाहता, उसकी मर्जी है, तो वो किसी और बैंक के पास जाके अपना कोई टाइम डिपॉजिट, अपनी कोई FD करवा लेता है. ऐसे ही जिस बैंक के पास करवाई है उसने भी किसी और के पास करवाई होगी, देयर चॉइस, वो करवा सकते हैं. दे हैव दिस फैसिलिटी. तो जो बैंकों का आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन है टाइम डिपॉजिट्स की, मतलब एक बैंक के दूसरे में पड़ी हुई हैं फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, दूसरे के किसी थर्ड के पास पड़े हुए हैं, उन सब का डिफरेंस निकाल देना है, उनको एक्सक्लूड करना है. एक्सक्लूड करने का मतलब आपने देख लेना बुक में, इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड. Interbank deposits are the deposits which are held on behalf of other banks. They do not form a part of the money supply. मतलब ये कि किसी भी बैंक के पास जितना भी टोटल FDs हैं उसमें जो बैंकों की हैं आपस में एक दूसरे के साथ, उसको माइनस कर देना है. तो व्हाट विल बी द लेफ्ट अमाउंट, दैट अमाउंट विल बिलोंग टू द पब्लिक. यही मीनिंग हुआ ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बैंकों का आपस में जो भी लेना देना उसको निकाल दें, तो वट एवर रेस्ट मनी इज लेफ्ट विद द बैंक, तो दैट मनी जो टाइम डिपॉजिट है या फिक्स डिपॉजिट है वो किसके होंगे? फिर वो आम पब्लिक के होंगे. उस मनी को लेना है. दैट इज वाई दिस नेट वर्ड हैज बीन यूज्ड कि भाई इंटर बैंकिंग जो उनके आपस में ट्रांजेक्शन्स हैं FDs की या टाइम डिपॉजिट्स की, दे आर टू बी एक्सट्रैक्टेड, they are to be subtracted. Whatever is left now, that belongs to the people, so that money is to be included in this M1. Then we get this third measure M3. जो M3 है, it is also known as broad money supply. M3 is known as broad money supply. It is given in the book, you can read later on. It is known as broad money supply. Now next is M4, fourth measure. M4 is equal to M3 plus M3, यही वाला हो गया ये पार्ट. अब आपको याद रखना पड़ेगा, M3 में अगर आ जाए आपको व्हाट इज M3, तो M3 मींस M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स. नाउ प्लस क्या करना है, एडिशनल थिंग इज टोटल डिपॉजिट्स विद, यहाँ पे मैंने ओनली टू सेव टाइम, पोस्ट ऑफिस, PO मींस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, टोटल डिपॉजिट्स. ठीक है, इसका एंड एक्सक्लूडिंग NSCs, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स फुल फॉर्म. इसका मीनिंग क्या हो गया? टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग NSC. थोड़ा सा ध्यान से समझना है यहाँ पे. अभी इन दिस पॉइंट आई हैव टोल्ड यू कि वट एवर मनी ऑफ द पीपल इज लाइंग इन द पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स. ठीक है, जैसे बैंक का अकाउंट ऐसे ही पोस्ट ऑफिस का. तो यहाँ पे टोटल वर्ड का मतलब है कि लोगों के दो तरह से जो मनी है दैट कैन बी केप्ट इन पोस्ट ऑफिस. एक तो है कि पोस्ट ऑफिस में उनका जो सिंपल ऑर्डिनरी अकाउंट है वहाँ पे पैसे हैं, आप कभी भी जाओ जाके निकालना पड़ेगा, चेक नहीं होता है. यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में चेक फैसिलिटी नहीं होती है, वन हैज़ टू गो पर्सनली, वहाँ पे विथड्रॉल स्लिप पे भर के तभी निकाल सकते हैं. तो एक तो हो गया ऑर्डिनरी जो सिंपल अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, उसमें पड़े हुए पैसे. प्लस दूसरा क्या होता है, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो लोगों की सेविंग्स को इनकरेज करने के लिए, इन ऑर्डर टू इनकरेज स्मॉल सेविंग्स, वो कोई ना कोई अपनी कोई और भी स्कीम्स चलाते हैं, सेविंग की स्कीम्स चलाते हैं. अब वो कौन सी हैं? जैसे अगर आपको याद हो, लास्ट लेसन में वी हैव डन कैपिटल सीड्स. तो कैपिटल सीड्स में एक आया था लास्ट टर्म, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स. तो उसमें क्या बोला था? स्मॉल सेविंग्स मीन्स पोस्ट ऑफिसेज, दैट मनी विच द पोस्ट ऑफिसेज
post offices, they want to encourage the people to save and they want them to come to them to save money. तो उसके लिए कोई ना कोई अलग से कोई स्कीम चलाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो पॉपुलरली चल रही हैं अभी, किसान विकास पत्र, शायद आपने सुना होगा, या कोई और जैसे पहले होता था इंदिरा विकास पत्र, आजकल तो नहीं है, पहले होता था. तो ऐसी कोई ना कोई स्कीम चलाते हैं. उसमें बॉन्ड मतलब एक सर्टिफिकेट होता है, एक जैसे आपका क्लास का सर्टिफिकेट होता है, सेम वे. तो उसके ऊपर लिख दिया जाता है, जैसे आज डिपॉजिट करवाया, मान लो 10,000 रुपीज, तो 10 ईयर्स के बाद वो मिलेंगे, डबल होके मिलेंगे. जो किसान विकास पत्र है डबल होके मिलेंगे. टाइम मेरा गलत भी हो सकता है, पता नहीं 8.5 या 9 साल है या 9.5 है, कुछ ऐसे है. मतलब एक फिक्स टाइम के बाद डबल होके वो मनी मिलेगा. तो इसका मतलब हो गया कि लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट करना है. कोई भी आदमी हो, कोई भी सोचेगा ठीक है अभी डबल होके मिलेंगे तो हम अब डिपॉजिट करवा देते हैं. तो ऐसी कोई ना कोई स्कीम्स जो पोस्ट ऑफिस है वो अपनी अनाउंस करते रहते हैं एंड दे इनकरेज पीपल कि उसमें लोग जमा करवाएं. बट एक वर्ड हैज़ बीन यूज्ड हियर, एक्सक्लूडिंग. एक्सक्लूडिंग मतलब ये वाली स्कीम को छोड़ के, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वाले पार्ट को छोड़ के, बाकी और जो भी स्कीम्स हैं, वट एवर मनी इज लाइंग इन देम एज वेल एज इन द सिंपल अकाउंट्स इन द पोस्ट ऑफिस, वो सारे का सारा मनी. और सिंपल बोलचाल में क्या बोले, जो भी मनी पोस्ट ऑफिस के पास है सारा, चाहे लोगों ने किसी स्कीम में डिपॉजिट करवाया हुआ है, चाहे लोगों ने अपने सिंपल अकाउंट में रखा हुआ है, कोई भी है, सबका टोटल. सिर्फ उसमें से एक छोड़ना क्या है, व्हाट इज टू बी लेफ्ट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स. अब ये क्या होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट? ये होता है नॉर्मली लोगों को इनकरेज करने के लिए कि जो इनकम टैक्स लगता है जिन लोगों की इनकम के ऊपर, तो थोड़ा सा वहाँ से उनको डिस्काउंट मिल जाए, उसके लिए सेविंग्स शो करनी पड़ती हैं. तो टैक्स में थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है अगर लोग इसमें अपनी सेविंग्स करवाएं. तो नॉर्मली ये तकरीबन आई थिंक 6.5 या पता नहीं 6 ईयर्स के लिए होता है. तो जो भी मनी है ये एक ऐसे बोल सकते हैं एक तरह की इन्वेस्टमेंट है लोगों की. पीपल दे डिपॉजिट मनी, और जितना भी टाइम उस बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है सर्टिफिकेट के ऊपर, तो भी इतने टाइम के बाद आपको पैसे मिलेंगे. ये डेट ऑफ मेच्योरिटी है. जैसे मान लो आज की डेट में करवाया, सिंपली फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, तो आज से 6 ईयर्स के बाद लिखा होगा इतने पैसे मिलेंगे, इस डेट को मिलेंगे आपको मेच्योरिटी. एंड दिस इज ए काइंड ऑफ श्योर इन्वेस्टमेंट. श्योर इन्वेस्टमेंट का मतलब इसको देने से गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती है कि 6 साल के बाद कोई गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस ये नहीं कहेगा कि आपको पैसे नहीं दे सकते, कल आना परसों आना. नो, आपको उसी टाइम पे आपको पैसे दिए जाएंगे. ठीक है. अदरवाइज बाकी भी है, बट स्टिल ये एक थोड़ा सा है कि इसमें इनकम टैक्स में कंसेशन मिल जाता है, थोड़ा सा सेविंग अगर शो करें तो कंसेशन मिल जाता है. ठीक है. सो इस करके इसको छोड़ के रेस्ट ऑल द स्कीम्स एंड ऑल द मनी विच इज लाइंग इन द सिंपल अकाउंट्स ऑफ द पीपल इन द पोस्ट ऑफिस, that is to be added in this M3. तो then we get the last measure, that is M4. ठीक है जी. अच्छा, अब आपको यहाँ पे 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है. डिफाइन मनी सप्लाई, व्हाट आर इट्स मेजर्स, या एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. तो फिर इन डिटेल आपने ऐसे इक्वेशन बना के आपने लिखना है सारा. पहले मीनिंग इज टू बी गिवन, देन दीज 4 मेजर्स आर टू बी गिवन. बट आपको सेकेंड फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन मनी सप्लाई, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स. Now, what problem occurs most of the time? Majority of students, components में they start writing the measures. That is wrong answer. Measures नहीं पूछे हुए हैं. We have been asked कि define money supply and give components. So in that case पहले आपने define कर देना है. Then आपने ऐसे ही flow chart की form में ही बना सकते हो आप, no problem. फिर आपने लिखना है currency and demand deposit. Then these are to be explained. अगर ये 6 मार्क्स में है तो थोड़ा सा इलेबोरेशन इज रिक्वायर्ड. तो फिर आप इसके पॉइंट्स बना दो जैसे बुक में दिए हुए हैं, और डिमांड डिपॉजिट्स. बट बुक में एक थोड़ा सा गलत तो नहीं कहेंगे, बट वो मिस प्रेजेंटेशन कह सकते हैं. उन्होंने दे हैव गिवन दीज डिटेल्स एज ए पार्ट ऑफ दिस M1 ओनली, इफ यू हैव सीन इन द बुक. तो इसके पार्ट्स में एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन, चाहे सेम ही है, बट आई थिंक इट शुड बी प्रेजेंटेड दिस वे ताकि क्लैरिटी हो जाए. ठीक है. सो 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे, डिफाइन मनी सप्लाई, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, या डिफाइन मनी सप्लाई, व्हाट आर इट्स मेजर्स. ठीक है जी. 2 वे में क्वेश्चन आ सकता है. ठीक. चलो, एनी हाउ नाउ लेट अस with this our syllabus के according our topic is over, our chapter is over, but only for your better understanding, now you please come to last page of this chapter, very last page. उस पे एक पॉइंट दिया हुआ है, मॉनिटरी सिस्टम इन इंडिया. हैव यू गॉट इट? इस चैप्टर के एंड में. ठीक है. ये सिलेबस में नहीं है, बट मैं वैसे आपको पता होना चाहिए.
थोड़ा मतलब बीइंग इन ए सीनियर क्लास वी ऑल शुड नो। अब इसमें बताया हुआ है, बाद में आप डिटेल में पढ़ लेना, अभी मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि इंडिया का मॉनिटरी सिस्टम क्या है। इंडिया का मॉनिटरी सिस्टम है इनकन्वर्टिबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। ठीक है, इनकन्वर्टिबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, इसका मतलब कि हमारे कंट्री में नॉर्मली जो करेंसी है वो ज़्यादा करेंसी वो पेपर की फॉर्म में है। नो डाउट कॉइन्स तो होते ही हैं, बट कॉइन्स का जो पार्ट है दैट कंस्टिट्यूट्स ए वेरी स्मॉल पार्ट। करोड़ों रुपए हैं तो उसमें कॉइन्स करोड़ों में नहीं होंगे, कॉइन्स कुछ कुछ होते हैं, थोड़े होते हैं। ठीक है, तो कॉइन्स भी हैं बट कहा उसको भी करेंसी जाता है, बट नॉर्मली जो ज़्यादा है वो पेपर इनकन्वर्टिबल पेपर करेंसी हमारे कंट्री में चलती है। नाउ यू मे आस्क कि भाई इनकन्वर्टिबल का क्या मतलब है। इनकन्वर्टिबल है कि आरबीआई के पास जाकर के हम लोग अपने नोट को देके कन्वर्ट नहीं करवा सकते कि भाई हमारे पास 100 रुपीज़ का नोट है, आप 100 के बदले हमें 100 रुपीज़ का गोल्ड दे दो, हमें मेटल दे दो, वो नहीं मिलेगी। ठीक है, कंट्री में जो एक हमारे कंट्री में चलता है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम चलता है। इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस हेडिंग यू कैन सी मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मीनिंग होता है कि आरबीआई ने एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने पास हमेशा रिजर्व की फॉर्म में रखना है। जैसे हम गाड़ी में तेल डलवाते हैं तो रिजर्व रहता है ना थोड़ा सा, उसके ऊपर जितना मर्जी हो, तो सेम वे कंट्री में कितनी करेंसी होगी, कितनी एक्सपेंशन होगी, जितनी मर्जी हो, बट आरबीआई हैज टू मेंटेन सम रिजर्व। उस रिजर्व को उसको नहीं छेड़ना है। अपने किसी भी कोई भी इमरजेंसी आ जाए वो रिजर्व को नहीं हिलाना है, कोई भी इमरजेंसी हो। तो वो जो रिजर्व है दैट इज कॉल्ड मिनिमम रिजर्व। वो कितना है 200 करोड़ ऑफ रुपीज। अब उस 200 करोड़ रुपए में क्या क्या हो सकता है, चॉइस है उसके पास। एक तो उसमें हो सकता है मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड, मतलब कुछ ये वैल्यू जो है वो गोल्ड की फॉर्म में रखनी है आरबीआई ने, और कुछ क्या है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जैसे आप सेविंग करते हो घर पे, आप चाहे गोल्ड की फॉर्म में आप बचा के रख लो, चाहे आप नकद कैश पैसों की फॉर्म में रख लो, चॉइस है ना, दोनों भी रखनी है। तो ऐसे ही आरबीआई का एक है कि कुछ कुछ पैसा तो जो है ना गोल्ड की फॉर्म में बचा के रखना है, गोल्ड ही फिजिकल गोल्ड की फॉर्म में होना चाहिए, मेटल की फॉर्म में। और बाकी का जो बचा हुआ है दैट कैन बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो भी रिजर्व रखनी है। मतलब फॉरेन जैसे डॉलर है, अमेरिकन डॉलर्स हैं, इंग्लिश पाउंड है, जापानीज येन है, कोई भी फॉरेन करेंसी। अब आमतौर पे क्या होता है, कौन सी करेंसी ज़्यादा प्रेवलेंट है वर्ल्ड के अंदर, वो अमेरिकन डॉलर्स हैं जो सभी जगह चलते हैं। ठीक है, तो आरबीआई की कोशिश होती है कि जो मोस्ट पॉपुलर करेंसी है फॉरेन करेंसी उसकी फॉर्म में रखा जाए, अदरवाइज कोई भी हो सकती है। बट प्रॉब्लम अराइज करती है ना, अमेरिकन डॉलर तो दुनिया भर में चल जाएगा, पर कोई कहे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कोई नाइजीरिया की करेंसी चलाओ, वो थोड़ी कोई पूछता है उसको। मतलब वो करेंसी लेनी है जिसको सारे ही मानते हैं, सारे देश उसमें एक्सचेंज करना लाइक करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली जो फेमस करेंसीज हैं तो आजकल के टाइम में डॉलर ही है, तो वो उसकी फॉर्म में। बट अदरवाइज कोई और है, इंग्लिश पाउंड है, वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसीज। ठीक है, तो एक ये मिनिमम स्टॉक रखा जाता है उस 200 करोड़ रुपए की वैल्यू के इक्वल। उसके बाद बाकी का उस बेसिस को रख के फिर आरबीआई एक्सपेंड कर सकता है। तो इस करके अब कोई आदमी, आप या मैं जाके कहें कि हमारे पास 2000 रुपए ले लो, बदले में गोल्ड दे दो, वो नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो इस करके इनकन्वर्टिबल का है कि हम अपनी पेपर की करेंसी को, अपने नोट्स को बैंक में जाके कन्वर्ट नहीं करवा सकते इन द फॉर्म ऑफ हम कहें कि हमें फॉरेन एक्सचेंज दे दो या हमें गोल्ड दे दो, वो नहीं मिलेगा, हमें किसी को भी नहीं मिलेगा। तो इस करके इनकन्वर्टिबल है। ठीक है, बाकी वो रेपिटेशन ही है कि जो कॉइन्स हैं, 1 रुपी का कॉइन दैट इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड रेस्ट ऑफ द कॉइन्स और जो करेंसी है पेपर करेंसी दैट इज इशूड बाय, इशूड मतलब पब्लिश करके प्रिंट करके लाना जो है वो आरबीआई का काम है। बट कोई भी हो, चाहे 1 रुपी कॉइन और अदर कॉइन्स और अदर पेपर नोट्स, दे आर ब्रॉट इनटू सर्कुलेशन बाय द आरबीआई। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर उसको लेके आना, उसको मतलब एक सोर्स प्रोवाइड करना, कैसे उसको इंजेक्ट करना है, वो बैंकों में कैसे लेके आना है, लोगों के पास है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द आरबीआई। गवर्नमेंट जो है वो छाप तो सकती है, मिंट कर सकती है कॉइन को 1 रुपी के, बट उसको कैसे इंजेक्ट करना है, कैसे लेके आना है सिस्टम के अंदर, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द आरबीआई। तो दैट वी कैन से कि भी आरबीआई इज द मेन कंट्रोलर, मेन पर्सन तो नहीं कहेंगे, मेन एंटिटी विच हैंडल्स ऑल दीज थिंग्स। तो ये है हमारा। और जो आरबीआई है वो आगे उसके नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे उसके फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, सो फॉर टुडेज लेक्चर ओनली दिस पार्ट इज टू बी कवर्ड। ये इसको अपने बुक के ऊपर यू कैन रीड, यू कैन राइट ओनली टू बी रीडिंग। ठीक है, याद नहीं करना, सिंपल है ये, ओनली फॉर रीडिंग पर्पस। ठीक, अच्छा, एक बीच में आपका जहाँ पे
कहीं पर आपने ना जहाँ किया है हमने डेफिनिशंस की थी, डेफिनिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप. You can see the page number. In my book it is page 5.17, but I have very old book. जल्दी से निकाल लीजिए. Definition on the basis of scope. उसमें एक one heading is given, classification of money, and below that heading one box type item is given, face value versus intrinsic value. ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ये है नहीं but you should know. This I wanted to explain. फेस वैल्यू का मीनिंग होता है कि आपके पास जो कोई भी नोट है, मान लो आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है, तो उसके ऊपर व्हाट इज प्रिंटेड 100, यही लिखा होता है ना 100. तो फेस वैल्यू मीन्स द वैल्यू विच इज प्रिंटेड ऑन दैट नोट. जो सामने, फेस का मतलब जो सामने दिख रहा है, वट एवर इज विजिबल टू अस, वट एवर इज रिटन ऑन दैट. तो उसके ऊपर लिखा 100. मान लो 10 का नोट है तो ऊपर लिखा है 10, 200 का है तो 200 लिखा है. तो जो भी सामने प्रिंटेड है उसके ऊपर पब्लिश किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू, सामने जो दिख रही है. बट इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी विद विच दैट नोट हैज बीन मेड. मतलब जैसे 200 रुपीज़ का नोट है तो फेस वैल्यू तो होगी 200, बट अगर आप ध्यान से देखो तो 200 का नोट एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर ही है. अब उस 200 रुपये से आप मार्केट जाओ, आप जाके कितना सारा आप पेपर परचेज कर लो, 200 में उतना पेपर थोड़ी आएगा जितना उस नोट के ऊपर लगा हुआ है, एक छोटा सा रेक्टेंगल साइज लगा हुआ है. आप जाके कितनी सारी शीट्स ऑफ पेपर आप परचेज कर सकते हो. 100 रुपये का नोट है, कितनी सारी पेपर की शीट्स आप ला सकते हो. 2000 का नोट है, कितना सारा पेपर आप खरीद के ला सकते हो. तो इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब कि वो जो जिस चीज से वो नोट बना हुआ है, वो कॉइन है या नोट बना हुआ है, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, उससे हम क्या कितना सामान ले सकते हैं. तो दैट इज मच मोर देन द फेस वैल्यू. इज इट और नॉट? एक 1000 रुपये 2000 के नोट पे एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर है, वो उसकी फेस वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, बट उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उस पेपर के पीस की अपने आप में तो कोई वैल्यू नहीं है, एक छोटे से कागज की अपने आप में कोई अहमियत नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है, ऐसे ही कॉइन्स को ले लो आप, 5 रुपीज़ का कॉइन है या 10 का है, तो 10 रुपये के कॉइन के ऊपर 10 लिखा है, दैट इज विल बी नोन एज इट्स फेस वैल्यू. बट आप उस 10 रुपये से जाके आप उसकी जो जिस मेटल से वो बना हुआ है, वो बड़ी एक डाइल्यूटेड सी मेटल होती है, बिल्कुल यूजलेस ही होती है, कोई खास वैल्यू तो नहीं होती, ना कॉपर होता है, ना वो पूरा गोल्ड होता है, ना कोई सिल्वर है. अगर ऐसा हो तो फिर तो लोग उसको पिघला पिघला के सारी मेटल इकट्ठी करनी शुरू कर दें, है ना. तो बड़ी यूजलेस सी वो मेटल बना के उससे बनाते हैं, किसी के काम की नहीं रहती वो. ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब जिस चीज से वो करेंसी बनी है, नोट हो या कॉइन हो, वो अपने आप में बड़ी मतलब कम होती है, बट उसके ऊपर जो प्रिंटेड होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है. तो फेस वैल्यू इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, because the commodity with which that coin or note has been made, that value is very less, that is very negligible, which can be avoided or what can we say, ignore कर सकते हैं उसको, इतनी ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है. ठीक है, बस ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, बिकॉज कई बार आ जाता है. तो विद दिस टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, सो आई टेक योर लीव. थैंक यू ऑल. टुडे ये सारा कुछ आपने पढ़ के रखना है, टुमारो वी विल गो अहेड. थैंक यू. Thank you, ma'am. Now you can close the meeting.